Welcome dear learners, I Dr. Anjali Saxena welcome you all. Dear learners, today we will start water treatment topic. This is in our fourth module. We have also completed fuel topic of this unit. So let's start our water treatment topic. Water treatment, which is in fourth module, and in this topic we have to discuss what is hardness and how we will remove hardness and what are the hardness causing salts. So let's discuss. Dear learners, water treatment में अगर हम देखें तो वाटर जो कि जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड वी कैन से वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. द वाटर विच प्रोड्यूस lather easily with soap is known as soft water, while the water which does not produce lather easily with soap is known as hard water. So we can say soap consuming capacity of water is known as hardness. So what is the reason of hardness? In our water, or we can say in our hard water, there are some soluble salts of calcium, magnesium and other heavy metals which does not produce lather with soap. So what is the reason why they doesn't produce lather with soap? We can see here a reaction in which this is an example of soap. We can say sodium stearate. We know sodium and potassium salt of higher fatty acids are known as soap. Calcium chloride, which is a salt which is responsible for hardness. So we can say this is the hardness producing salt. If it is present in our water in soluble form, that will react with soap to form this insoluble salt. तो जो हमारा soluble salt है कैल्शियम का, it will convert into insoluble calcium salt. So जिससे कि लेदर फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, मेसल फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और इसीलिए ये सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी शो करेगा. Now hardness तो समझ में आता है, but how many types of hardness are there? There are two types of hardness. One is temporary hardness while other one is permanent hardness. Temporary hardness is also known as carbonate hardness, while permanent hardness is also known as non-carbonate hardness. Carbonate hardness is due to carbonates actually, or bicarbonates actually, like calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, magnesium carbonate, iron carbonates are the salts which are responsible for temporary hardness, and the hardness which can be removed by boiling only, that is known as temporary hardness, while the permanent hardness is that hardness which cannot be removed by boiling. We have to remove it by chemical methods. So that type of hardness is known as permanent hardness. Sulfates and chlorides of magnesium and calcium are responsible for permanent type of hardness. If we combine temporary and permanent hardness, that will known as total hardness. So let's discuss some multiple choice question related to this topic. First question. Water which does not form lather readily with soap is known as, तो उसको हम बोलते हैं hard water. So D should be its answer. Hardness of water is its क्या होती है? Is it soap releasing capacity, soap consuming capacity, soap forming capacity, soap dissolving capacity? So as we know, soap consuming capacity of water is known as hardness. Third question. Acceptable pH range of drinking water is. Water की pH जो हम drinking water होता है उसकी pH कितनी होनी चाहिए? So we know it should be slightly alkaline. तो क्या ये 7 to 8.5 होनी चाहिए, 6 to 7, 6.5 to 9.2 और 8 to 1. तो जो ड्रिंकेबल वाटर होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है तो उसकी पीएच होनी चाहिए 7 to 8.5. फोर्थ क्वेश्चन. वाटर सॉफ्टनिंग इज अ. वाटर सॉफ्टनिंग किसे कहते हैं? तो अगर हम हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को रिमूव कर देंगे तो दैट विल बी नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग. तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या कहा हुआ है. रिमूव्ड ऑफ हार्डनेस कॉजिंग बाय कैल्शियम मैग्नीशियम, रिमूव्ड ऑफ हार्डनेस कॉजिंग बाय Na+ एंड पोटेशियम प्लस. तो सोडियम और पोटेशियम कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. रिमूवल ऑफ हार्डनेस कॉजिंग बाय कैल्शियम एंड सोडियम, अगेन सोडियम कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. एंड नन ऑफ दीज. तो हम जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे सॉल्ट हैं जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं और अगर इनका रिमूवल कर देंगे तो दैट विल बी नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग. मूविंग ऑन फिफ्थ क्वेश्चन. The water which contains impurity like calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, magnesium carbonate is a type of blank hardness.
तो जितने भी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होते हैं वो कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं और कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं. सो इट्स आंसर शुड बी ए. 6th क्वेश्चन, when water is becoming hard due to the salts other than carbonates then the type of hardness is. तो कार्बोनेट के अलावा जो भी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है वो परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है. सो इट्स आंसर शुड बी बी. मूविंग ऑन 7th क्वेश्चन, कार्बोनेट हार्डनेस इज हार्डनेस. तो हम जानते हैं कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं, हम परमानेंट नहीं कहते, माइल्ड नहीं कहते. तो इट्स आंसर शुड बी टेम्परेरी. 8th क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू dissolved calcium and magnesium salts of permanent hardness is due to. तो हम जानते हैं बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तो टेम्परेरी प्रोड्यूस करते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट्स जो होते हैं वो परमानेंट प्रोड्यूस करते हैं. तो क्लोराइड्स भी हैं, नाइट्रेट्स भी हैं, सल्फेट्स भी हैं. तो इट्स आंसर शुड बी ऑल ऑफ देम. मूविंग ऑन 9th क्वेश्चन, टोटल हार्डनेस इज द सम ऑफ. तो टोटल हार्डनेस किसका सम होती है, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस का. तो देखते हैं, concentration of all salts present, concentration of calcium and magnesium salts present, temporary hardness and permanent hardness, concentration of impurities present in the water. So its answer should be C. 10th question, hardness of water is due to. hardness क्यों होती है, क्या वो के पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स की वजह से होती है, या सॉल्ट्स ऑफ आयरन की वजह से होती है, या सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती है, या SiO2 की वजह से होती है. तो सी शुड बी इट्स आंसर. कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो होते हैं वो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11th, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉज. तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विल कॉज टेम्परेरी हार्डनेस. क्या ये सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करेंगे, परमानेंट हार्डनेस या टेम्परेरी हार्डनेस. तो सी शुड बी इट्स आंसर. 12th क्वेश्चन, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय. हम जानते हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ओनली. तो क्या वो बॉइलिंग से, फिल्ट्रेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या सेडिमेंटेशन. तो ए शुड बी इट्स आंसर. क्यों बॉइलिंग से दूर हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अमंग फॉलोइंग. इनमें से कौन सी फॉर्म प्योरेस्ट होगी, सी वाटर जिसमें हाईली अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, लेक वाटर, रिवर वाटर, तो इन सभी में सॉल्ट्स पाए जाते हैं, रेन वाटर इसका आंसर होगा. प्योरेस्ट फॉर्म इन सभी में जो हुई वो रेन वाटर हुई. विच सॉल्ट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द हार्डनेस इन वाटर. देखते हैं जरा, क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, टेम्परेरी. कैल्शियम क्लोराइड परमानेंट, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम परमानेंट, जबकि सोडियम के सॉल्ट कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते. तो डी शुड बी इट्स आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस आर. तो देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट तो ये तो करता है, सल्फेट तो परमानेंट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट करेगा टेम्परेरी. और हमसे पूछा हुआ है परमानेंट हार्डनेस. और देखते हैं, सोडियम सल्फेट कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी प्रोड्यूस करेगा. सोडियम सल्फेट कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, सोडियम. मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट प्रोड्यूस करेगा. कैल्शियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा. मैग्नीशियम क्लोराइड भी परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा. तो डी शुड बी इट्स आंसर. 16th क्वेश्चन, सॉल्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस आर. अब हमसे टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट पूछे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये टेम्परेरी वाला हुआ. सोडियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता. कैल्शियम सल्फेट परमानेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट. तो ए शुड बी इट्स आंसर. मूविंग ऑन 17th क्वेश्चन, हार्ड वाटर कंटेन्स. हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम और आयरन के सॉल्ट होते हैं, या NO, PO ये ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस के, या Na+, K+, ये तो कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते. डिसॉल्व गैसेस भी कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करती. तो ए शुड बी इट्स आंसर. अब हमें कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं 18th क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होगी. हम जानते हैं जितने भी नाइट्रेट्स और सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं दे प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस. मैग्नीशियम सल्फेट विल प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होंगे वो टेम्परेरी हार्डनेस, नाइट्रेट्स परमानेंट, और ये कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते। तो इट्स आंसर शुड बी बी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय, तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम जानते हैं बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, तो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, तो इसका आंसर होना चाहिए बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय, परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्या फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से, बॉइलिंग से, या केमिकल ट्रीटमेंट से? बाय केमिकल ट्रीटमेंट हम दोनों टाइप की हार्डनेस, स्पेशली परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। मूविंग ऑन 21th क्वेश्चन। यहाँ हमें एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को वाटर के साथ बॉइल किया जा रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और CO2 बन रहा है। ये जो CO2 रिलीज हो गया, जिसकी वजह से हमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला, और इस प्रेसिपिटेट जो कि हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता नहीं है, तो जब कभी भी बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स को हीट किया जाता है तो CO2 रिलीज हो जाती है, तो कैल्शियम के सॉल्ट CaCO3 और मैग्नीशियम के सॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि किसी भी तरीके की हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये टेम्परेरी तो ये क्या होगा, हार्डनेस दूर हो जाएगी। सो हार्डनेस रिमूव बाय अवर मेथड इज टेम्परेरी हार्ड, बॉइल करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इन ब्लैंक फॉर्म, जो सॉल्ट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं पानी में, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? क्या वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, या नन ऑफ दीज? तो हमारे पानी में जब कभी भी कैल्शियम, मैग्नीशियम या अदर हैवी मेटल के सॉल्ट्स, यानी कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स सॉल्युबल अमाउंट में होते हैं, देन दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। On boiling hard water, temporary hardness is removed by forming precipitates of, तो किसके precipitates बन रहे हैं देख लेते हैं। क्या वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे? हालांकि ये आंसर मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपको स्क्रीन पर, तो देखिए जरा। क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ इससे पहले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने बताया भी था कि जो मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम के सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के सॉल्ट को गर्म करते हैं या बॉईल करते हैं वाटर के साथ CO2 रिलीज हो जाने के कारण। तो क्या होगा, कैल्शियम के सॉल्ट CaCO3 और मैग्नीशियम के सॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट, तो Ca जिसका मास है 40, कार्बन जिसका मास है 12, ऑक्सीजन एक का मास 16, तो ये हो गया 40 + 12 + 48। सो 100 शुड बी इट्स आंसर, जो कि हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय, हम अपनी जो हार्डनेस होती है वाटर सैंपल की, हमने प्रैक्टिकल्स में भी देखा है कि उसको हम EDTA मेथड से रिमूव करते हैं। हम एक टाइट्रेशन करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइप ऑफ टाइट्रेशन होता है, जिसमें EDTA एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, EDTA एज अ नोन सॉल्यूशन यूज होता है। EDTA का क्या मीनिंग है देख लेते हैं एक बार। क्या ये इरियोक्रोम डाइइथाइलिन टेट्राएसिटिक एसिड है, या इथाइल डाइएसिटेट एसिटिक एसिड है, या इरियोक्रोम डाइअमीन टेट्राइथाइल एसिटिक एसिड है, या इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड है? सो D should be its answer, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA कैसा होता है? EDTA क्या हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ये, और हेक्साडेंटेट लिगेंड यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है सेंट्रल मेटल एटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनेस डिटर्मिनेशन इज ब्लैंक टाइप ऑफ टाइट्रेशन, तो जैसा भी मैंने बताया कि EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और वो टाइट्रेशन जिनमें प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उनको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो C इज इट्स आंसर। हार्डनेस जो है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जबकि एल्कैलिनिटी वाला जो है वो न्यूट्रलाइजेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस,
अगर हमारे पानी में एक्स्ट्रा नाइट्रेट हो या नाइट्रेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, then it will produce blue baby syndrome. Last question. The maximum permissible limit of fluoride in drinking water. हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें फ्लोराइड की जो लिमिटेड अमाउंट या परमिसिबल अमाउंट है दैट इज 1.5 ppm. सो आज के लिए इतना ही. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री ऑफ हार्डनेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक दो रिमूवल मेथड भी इंक्लूड करेंगे. आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा. आपका वाटर ट्रीटमेंट का हार्डनेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. रीज़न कॉजिंग, सॉल्ट्स कॉजिंग, इसमें मेन टारगेट ये है कि वो कौन से सॉल्ट हैं जो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन.